अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और ये भी बता दें कि स्क्रीन भी शो हो रही है या नहीं? यस जवाद सर। आप या यूसुफ आप बता दें। यस सर, हो रही है, शो भी हो रही है, आवाज़ भी आ रही। चलें, बस हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ना वो हम लोग जो है वो, मुझे कोई भी आप बीच में इंटरप्शन नेट की तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे बताना है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं फिर उसको उसके हिसाब से चीज़ें चेक कर लूँगा। ठीक है, यस सर। तो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अगर आवाज़ का मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लाजमन बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We are going to study this lecture number 9 before them. So this lecture number 9 is basically we are going to focus displacement analysis of various mechanisms. आगे चलते हैं. These are the topics which we are going to cover today. Uh, पहला ये है कि we are going to study the position analysis का introduction पढ़ेंगे. Then we will study methods of kinematic analysis, then coordinate systems, then translation and rotation and complex motion, then graphical position analysis of Grashof four bar linkage हम देखेंगे. Then construction of a graphical position solution, then vector loop representation of a linkage, और finally vector loop equation for four bar linkage हम drive करेंगे. तो यहाँ हमारा जो है ना लेक्चर ये खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहले we are going to study the introduction of position analysis. So basically in order to analyze mechanisms, basically there are three approaches. First is kinematic synthesis, then this is kinematic analysis, then it is kinetic analysis. So we have studied the kinematic synthesis in previous lecture number 3, in which we have calculated the number of links and joints, deferred mechanism, input motion and links dimensions. ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना उसमें हम लोग ये सारी चीजें जो है ना सर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स भी निकाले हमने, नंबर सिंथेसिस टेक्निक, देन preferred mechanism, input motion, links dimensions सर निकाली है जो प्रीवियस हमने जो लेक्चर पढ़े हैं उसमें. जी बताएं. सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी पहले, अब सही आई है। अ, अच्छा एक मिनट ठहरे. अब सही हो गई है सर। एक मिनट. अभी मैं प्ले करता हूँ, मुझे बताएं अगर सही आ रही है या नहीं. अगर दोबारा मसला हो तो फिर मुझे बता दें. ठीक। ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से. तो नेक्स्ट जो पार्ट है which is our today's part, that is kinematic analysis. In synthesis we have basically calculated the dimensions of link, but in kinematic analysis this is a micro level approach in which we are going to analyze the position or displacement of any link of mechanism, its velocity of any link of mechanism at any instant of time, and acceleration of link of any link of mechanism. So when we will calculate, when kinematic synthesis and kinematic analysis performed, then we will be able to uh, do kinetic analysis, जिसके अंदर आप फोर्सेस मोमेंट्स और बैलेंसिंग को हम लोग जो है ना उसमें देख रहे होते हैं. सो नेक्स्ट है
in proposed mechanism, in any mechanism, stresses should remain below the allowable level. एक सर जनरल सी अभी भी बात है, कुछ हम बच्चे MT1 कह रहे हैं stresses को आवाज जानते हैं, कम है किसी और भी थोड़ी mechanism सी को जब कम design ही है। करेंगे for the factor safety side, the stresses should remain always below the allowable. आवाज इधर मेरी तरफ से तो सही है, मुझे नहीं पता क्या वजह हो रही है। ठहरे मैं चेक करके फिर अभी इसको बताता हूँ आपको। ओके सर। Levels. So next step, to calculate these stresses, we need to know the static and dynamic forces which are going to act on the parts. So in order to calculate these forces, we have to acceleration. Why acceleration? Because according to सर ये Newton's आपने second law, 2x this पे is तो नहीं proportional to लगाया हुआ सर? acceleration. स्पीड हमारे इसकी पास आवाज force तब तेज है आएगी जब हमारे बहुत। पास acceleration आएगी. And if we want to calculate this acceleration, then ultimately we have to also calculate the velocity of the links, क्योंकि acceleration velocity से ही acceleration आती है, acceleration से dynamic forces आएंगी, उससे आपकी stresses आ रही होंगी. In order to calculate the velocity, we have to calculate the position or displacement of all links. So this is basically ये descending order के अंदर लिखा हुआ ये सारे points हैं हमारे. This will be the proposed mechanism to analyze the mechanism for we will perform the displacement analysis of links. After getting the displacement analysis that or displacement equation, we will in the velocity equation. Then velocity equation will be again differentiated to calculate the acceleration equation. And from acceleration, we will be we will at that moment we will become capable of finding dynamic forces. Means जिसमें static भी होंगी और dynamic भी होंगी. Then finally उससे हम लोग stresses calculate कर लिया करेंगे. So this is the proposed scheme. So in our today's lecture, and the remaining lecture which will be part B of this lecture, which will be conducted just after the mid exam, we are going to we focus on the position or displacement analysis of links. So in order to do kinematic analysis, ये वाला जो हमारा second part है, basically this first part we have already covered this in previous lectures. Now we are focused on this kinematic analysis, and kinematic analysis we are focused position analysis और डिस्प्लेसमेंट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, दैट्स व्हाई हम उसको पोजीशन एनालिसिस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं. सो नेक्स्ट है there in order to perform kinematic analysis there are two methods. First is graphical method, जिसमें we will become capable of finding position, velocity and acceleration analysis of each degree in increment of input link. तो हम उसमें क्या करेंगे, draw linkage to scale, measure the link angles with protector, टेक काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, एंड क्लॉकवाइज एंगल्स, क्लॉकवाइज वेलोसिटीज, क्लॉकवाइज एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव. ये एक आगे एक स्लाइड आएगी, उसके ऊपर हम लोग जो है ना ये वाला ग्राफिकल मेथड एक स्लाइड के अंदर ही हम लोग उसको देख लेंगे. नेक्स्ट अनदर मेथड इज एनालिटिकल मेथड, मींस उसमें हम लोग जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशंस इवेल्युएट करके हम लोग जो है वो काइनेमेटिक एनालिसिस स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एनालिसिस कर सकते हैं. सो in analytical method we have to derive the displacement or position equations, then we will differentiate this displacement equation to get velocity equation, then velocity equation to attain acceleration. So these equations will be solved for each degree increment of input link. बेसिकली आपके पास अगर जैसे 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म के अंदर लिंक नंबर 2 जो होते हैं ना वो आपकी क्रैंक होती है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है. दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज क्रैंक. ये लिंक नंबर 1 आपका ग्राउंडेड लिंक है, एंड लिंक नंबर 3 कपलर है, लिंक नंबर 4 इज बेसिकली रॉकर. सो the whole angles, this theta 3, this is theta 4. Theta 3 means the angle of link number 3 and theta 4 means the angle of link number 4. So basically link number 2 is input link जिस crank जो 360 पे rotate कर रही है. So crank angle is denoted by theta 2 and the remaining angles means theta 3 and theta 4 of remaining two links means coupler and rocker. जो कपलर और रॉकर के दोनों एंगल्स होंगे थीटा 4 एंड थीटा 3, दे आर डिपेंडेंट ऑन थीटा 2 विच इज बेसिकली द एंगल ऑफ क्रैंक.
तो हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक इज कैपेबल टू रोटेट इन 360 डिग्री एंगल, वो 360 के अंदर रोटेट कर सकती है। इट मीन्स that this question has 360 different solutions, means जब either you are going to solve by graphical method or by analytical method, then if अगर आप graphical method से इसको solve कर रहे हैं, you have to draw 360 figures for each increment of input link, means 45 डिग्री का एंगल है ये θ2 आपका, तो इसके ऊपर आपका एक डायग्राम बनेगी अगेन फॉर 46, जब ये होगा नई डायग्राम बनानी पड़ेगी, 47 डिग्री एंगल होगा। तो ये सारे एंगल वैसे जैसे जैसे θ2 चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे simultaneously these remaining angles θ3 and θ4 will also change. So in order to solve the question graphically, we means 360 के अंदर क्रैंक अगर रोटेट कर रही है, then ultimately we have to draw 360 different figures. तो ये एक बहुत बड़ा यानी लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट सोल्यूशन विल बी कि आप वी हैव टू ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड फाइनली वी विल इनपुट दिस इक्वेशन इन एनी सॉफ्टवेयर लाइक टीके सॉल्वर, मैथकैड, मैटलैब, पाइथन में भी कर सकते हैं, लिंकेजेस में, एमएससी एडम, प्रो इंजीनियर में, सॉलिड वर्क्स में, वर्किंग मॉडल में, एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो वी विल सिमुलेट, हम लोग फार्मूलाज जो है सपोज एक्सेल के अंदर उसको हम पुट करके और हम लोग जो है यानी ये एंगल जो हमारे पास होगा क्रैंक का θ2, इसको हम चेंज करते जाएंगे, इसकी मदद से आगे सारी जो आउटपुट सारी कैलकुलेशन की जो हमारे पास आ रही होंगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाया करेंगी। सो आसान तरीका ये है, इफ यू आर इन एनी इंडस्ट्री, तो हम लोग ये नहीं करते कि हम 360 ऊपर क्रैंक रोटेट करिए तो 360 फिगर्स बनाने बैठ जाए ग्राफिकल मेथड में, बट द सिंपलेस्ट वे कि आप सिंपलेस्ट यानी जो वे क्या है कि हम लोग जो है ना सिंपल यानी फार्मूलाज को पुट कर देते हैं इन एक्सेल, formulas which we have attained by this analytical method. We will incorporate these formulas in the columns of Excel और फाइनली हम लोग जो है ना इस एंगल की वैल्यू θ2 की चेंज करते जाते हैं और हमारे पास जो है ना फाइनली यानी कैलकुलेशंस होके डिस्प्लेसमेंट जो होती है फाइनल आती जाएगी, θ3 की वैल्यू भी आती जाएगी, θ4 की भी आती जाएगी। सो नाउ टू ऑनवर्ड जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें क्या द कॉलम। जी यहाँ तक बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो, एनीबॉडी, जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज करें। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सोल पर्पस जो आज के लेक्चर का क्या है कि वी आर गोइंग टू, जब भी वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस और पोजीशन एनालिसिस ऑफ एनी 4 बार लिंकेज, तो ये हमारा सोल पर्पस है इस पूरे चैप्टर का। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे वाले जितने लेक्चर्स हमने इस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे क्या थे कि हमने पहले लिंकेजेस का डिज़ाइन पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका जो अभी पिछला लेक्चर तक हमने क्या किया था कि हमने जो यूजिंग ग्राफिक बैटरी की मदद से क्या करते थे, उसके लिंकेजेस को ड्रॉ कर देते थे। नाउ इन दिस चैप्टर वी हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर to analyze the position change in the mechanism, velocity change and acceleration change in the mechanism। जैसे जैसे मैकेनिज्म मूव करेगा वैसे वैसे उसके हर लिंक के अंदर वेलोसिटी उसमें कितनी चेंज हो रही होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही होगी और एक्सेलरेशन कितनी चेंज हो रही होगी। तो अब आप अगर आप गौर करें तो अब इसके लिए 2 मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड हमारा आगे एक ही स्लाइड में कवर हो जाएगा, देर में वो स्लाइड आ जाएगी। और जो एनालिटिकल मेथड है आपका वो हमारा हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग एनालिटिकल मेथड के अंदर जो है ना एक सिंपल न्यूमेरिक मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे, उससे जो है ना एक इक्वेशन, जेनेरिक इक्वेशन उस लिंकेज की ड्रॉ अटेन कर लेंगे। अब हम जो है ना हमें ये पता है कि क्रैंक उस लिंक को कहते हैं जो 360 डिग्री में रोटेट करता है। तो हमारी क्रैंक जब 360 पे रोटेट करेगी तो हमारे पास 360 डिफरेंट फिगर्स आएंगी, उस हर लिंक आ रही होगी। जैसे मैंने पहले अभी आपने वीडियो में भी एग्जांपल में सुना है, अगर आपकी क्रैंक 45 डिग्री के ऊपर है तो आपके आगे कपलर की कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगी। इसी तरह जो है आपके जो
रॉकर है उसकी भी स्पेसिफिक पोजीशन होगी। अब आपकी क्रैंक 45 से 46 पे चली गई है, तो अगेन जो आपकी कपलर और जो आपका रॉकर है उसकी पोजीशन फिर चेंज हो गई है। अब आपकी क्रैंक 46 से 47 पे जाएगी, अगेन जो है आपके कपलर और उसका जो रॉकर है उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। गोया 360 में क्रैंक ने रोटेट करना है, तो देयर शुड बी 360 फिगर्स फॉर द पोजीशन एनालिसिस ऑफ द सेम मैकेनिज्म। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफिकल मेथड है दैट इज उसको हम कहेंगे उस वो जो है ना टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, यानी आपको 360 ज्योमेट्रिक फिगर्स जो है ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आसान हाल ये होता है कि हम एनालिटिकल मेथड में मैथमेटिक्स के जरिए उसको सॉल्व कर लें। तो अभी हम ये ग्राफिक इसका ओवरव्यू देखा है। अभी अब नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकल मेथड का, उसमें हम लोग जो है कंपास और प्रोटेक्टर की मदद से उसको ड्रॉ करेंगे लिंकेज को, देन एनालिटिकल मेथड आ रहा होगा। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, हैंड रेज करें, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। आवाज सबको सही आ रही है और वीडियो का कोई मसला तो नहीं है, ये मुझे बता दें यूसुफ आप या जो यस जवाद। सर, सही है आवाज़। आवाज़ भी सही है और वीडियो भी सही है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ना ये मेरा प्री रिकॉर्डेड है, पिछले साल मैंने 23 सेशन को पढ़ाया था, तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं साथ साथ मैं खुद भी इसको सुन रहा हूँ, जहाँ जहाँ इसमें हम लोग रोक रोक के आगे चलेंगे। जहाँ भी कहीं मसला आएगा मैं फ़ौरन आपने मुझे बताना है, तो और मैं इसको बीच में यानी वो भी करते रहेंगे हम लोग। मैं आपसे पूछता रहूँगा जहाँ आपको जिसको ना समझ आए। ये इटसेल्फ ये पहले भी मतलब इसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर का सेशन इंक्लूड है, पिछले सेशन को मैंने ये पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो है अगर आप लोगों को इससे अलावा क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, ठीक है। ओके सर। अब आगे चलते हैं, मैं स्टार्ट करूं अब। यस सर। चलिए। टर्म्स ऑफ एक्सेल, और फाइनली हम लोग जो है ना इस एंगल की वैल्यू थीटा 2 की चेंज करते जाते हैं, और हमारे पास जो है ना फाइनली उसका यानी कैलकुलेशंस होके डिस्प्लेसमेंट जो होती है फाइनल आती जाएगी, थीटा 3 की वैल्यू भी आ जाएगी, थीटा 4 की भी आती जाएगी। सो नाउ टू ऑनवर्ड जो हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू इवेलुएट एन इक्वेशन बाय यूजिंग दिस एनालिटिकल मेथड। ये जो मेन इसको हम यूज करेंगे। सो इन ऑर्डर इसके लिए हम बेस एनालिटिकल मेथड के लिए क्या है, बेसिकली देयर आर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप ये कर्सर की मूवमेंट गौर करें, दिस कैपिटल वाई एंड दिस कैपिटल एक्स, this is called GCS, means global coordinate system. The global mean the coordinate system at bigger scale. Next system is ये this one, ये small वाला आपको नजर आ रहा होगा, small y and small x. This is LNCS coordinate system. LN means local non-rotating coordinate system, जिसको हमने small xy से यहाँ डोनेट किया है। और इसका मतलब क्या है कि ये लोकल लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे, एंड इट इज नॉट मूविंग। जैसे आपका यानी ये इट मींस कि x विल रिमेन पैरेलल टू दिस कैपिटल x, स्मॉल y विल रिमेन पैरेलल टू कैपिटल y। थर्ड सिस्टम इज LRCS, जो कि ये ग्रीन कलर में हमने सुपर इम्पोज कर दिया है ऑन द लिंक नंबर 3, एंड इट इज लोकल रोटेटिंग, मीन दिस सिस्टम जो LRCS सिस्टम है, दिस विल रोटेट विद द और दिस विल मूव विद द मूवमेंट ऑफ लिंक नंबर 3, and we have denoted this system by x prime and y prime। यहाँ हमने शो किया। now we are going to further elaborate this system। हम इसको फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ये कैसे काम करता है। so first is our global system, ये जो कैपिटल y और कैपिटल x वाला था। so in global system it is denoted by GCS, x axis में रेफर्ड है x कैपिटल x, और कैपिटल Y से हम y एक्सिस को डिनोट कर रहे होते हैं, एंड इट इज अटैच टू ग्राउंड। इसकी शर्त यह है कि जब भी आप इस सिस्टम को लगाएंगे तो हमने यानी ये जो कैपिटल सिस्टम GCS सिस्टम होगा किसी ना किसी लिंक के पैरेलल होना चाहिए। जैसा कि इस वक्त ये जो लिंक नंबर 1 है हमारा ग्राउंडेड लिंक, ये और ये जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है ये ग्राउंडेड लिंक यानी उस पर प्ले किया गया है, मीन के ग्राउंडेड लिंक और हमारा जो GCS सिस्टम है ये पैरेलल है और दे आर अलोंग द सेम लाइन। तो जब भी हम यानी आगे भी सॉल्व किया करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारा ये वाला ग्लोबल सिस्टम है ये किसी ना किसी लिंक के अलोंग हमने इसको प्लेस करना है। तो नेक्स्ट सिस्टम अब हम पढ़ते हैं लोकल रोटेटिंग सिस्टम। अब लोकल मीन
local mean on smaller scale, and rotating mean it is capable to rotate. It is denoted by LRCS. It is embedded or pinned on the link. जैसे कि यहाँ हमने ये ग्रीन कलर का ली, इसमें हमने ये जो ना ये लिंक के ऊपर हम पिन कर देंगे इसको. और नेक्स्ट है, इट इज डिनोटेड बाय LRCS moves and rotate with the link to which it is attached. और इसमें x एक्सिस x प्राइम से और y एक्सिस को y प्राइम से हम डिनोट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है next is local non-rotating coordinate system. Non-rotating means कि it is denoted by LNCS and it is unable to rotate. It will always remain parallel to GCX. और इसमें x एक्सिस को x से हम डिनोट कर रहे होते हैं, y एक्सिस को y से. अच्छा, ये जो LNCS है इसके लिए नेसेसरी ये है, जैसे स्मॉल y और स्मॉल x, ये हम हमेशा जो है ना पिन के ऊपर अटैच करेंगे. और LRCS जो हमारा ये वाला है, इसको हम लोग जो है हमेशा लिंक के साथ एम्बेड कर रहे होंगे या इसको पिन कर रहे होंगे, ताकि ये लिंक की मूवमेंट के साथ ये भी मूव करता जाए. लेकिन जो हमारा ये जो LNCS है, ये जो स्मॉल y और स्मॉल x वाला है, ये मूव नहीं करेगा. अच्छा, किसी भी सिस्टम के अंदर हम जो है ना, इट्स अप टू अस कि हम कितने इसके जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना चाहते हैं. बेसिकली सोल पर्पस क्या है हमारा, कि हाउ मेनी वट एवर नंबर वी आर गोइंग टू टेक. अब इस जैसे इस केस में हम लोग जो है ना वी हैव chosen 3 different coordinate systems, GCS, LNCS and LRCS. हम इससे ज्यादा भी ले सकते हैं. सोल पर्पस क्या है इनका, जितने भी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होंगे, आइदर दे आर LNCS और LRCS या कोई और भी हो, finally all the readings, all the calculations will come with respect to this GCS system, which is global coordinate system. आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या मे बी एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन का मैथमेटिक्स में. तो उसमें हम लोग जो है ना वो उसको यानी एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं. ये जो अभी हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उस एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है. तो अभी हम देखते हैं आगे कैसे क्या होता है. तो पोजीशन वेक्टर ये आपका ए पॉइंट है और इट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन है एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ दिस ए पॉइंट with the help of this position vector RA. This is RA which is going to define the position of this point. Or this A point has x component Rx and y component Ry, and it is at angle theta with respect to this x axis. तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दिस इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y, मींस दिस ए पॉइंट या इसका जो पोजीशन वेक्टर है RA, इट इज लाइंग इन GCS सिस्टम और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो हम क्या करते हैं, फिगर 4 डिफाइंस द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल GCS सिस्टम. नेक्स्ट है 4B में क्या हो रहा है, इसमें हमने ना स्मॉल y और स्मॉल x के साथ एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेस कर दिया, जो कि हमारा लोकल रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो it defines the position of same point with respect to local coordinate system LCS having coincident with GCS. अच्छा, जो लोकल सिस्टम है हमारा वो रोटेटिंग भी हो सकता है, नॉन रोटेटिंग भी हो सकता है. लोकल सिस्टम जो होता है ना, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक रोटेटिंग होता है उसमें या नॉन रोटेटिंग होगा. तो इस वक्त जो है ना हमने इसको जनरली पढ़ रहे हैं कि दिस इज लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें अगर हम अब अकॉर्डिंग टू new local coordinate system we are going to define the position of point A. तो then it will be Rx, small rx आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ये कैपिटल Rx था and कैपिटल Ry था in terms of this GCS system. But in terms of this local coordinate system, जो इसकी अब आपके पास आ रहे हैं वो R और small x and this R small y. ये शो कर रहा है कि इस वक्त जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इस पोजीशन वेक्टर के या सॉरी इस पॉइंट के, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू दिस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल x एंड स्मॉल y. और ये एंगल फाई के ऊपर है. अगर आप गौर करें दिस स्मॉल x वाला ये जो हमारा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है LCS, इट इज एट एंगल डेल्टा फ्रॉम GCS. और जो हमारा पॉइंट ए है जिसको हम कहते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर इज at angle phi from this smaller LCS system coordinate system. तो दोनों एक्सिस के दरमियान जो ये कैपिटल Y कैपिटल X वाला हमारा जो है GCS सिस्टम है, दैट इज ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जो स्मॉल y और स्मॉल x वाला ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जो है वो LCS है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इन
एक्सिस के दरमियान जो एंगल है ना, या जो फेज है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन है या एंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो डेल्टा है। एंगल जो हमारी मीन्स इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस डेल्टा आ रहा है। हम अब आगे चलते हैं। A 2D vector can be represented by either polar or Cartesian coordinates। अच्छा, पोलर फॉर्म में क्या होगा, हमें जो है ना इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जैसे ये हमने आर ए पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका थीटा एंगल हमें चाहिए, दो चीजें चाहिए होती हैं। और कार्टेशियन फॉर्म में उसके एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आर एक्स कॉम्पोनेंट ये है और ये कैपिटल आर वाई कॉम्पोनेंट है। तो हम क्या करते हैं, द पोलर फॉर्म, दिस वन जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल है, it provides the magnitude angle of vector, and Cartesian form provides xy components. These two forms are they can interconvertible, they can be converted from one form to another form। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म्स। ये फिगर पुराने वाली ही है, पुराने स्लाइड वाली। सो पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म्स कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग दिस फॉर्म, दिस थ्योरम। तो देखें आर ए और ये इस फिगर से ले करें तो ये आर ए इज इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र, और ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास इस थीटा की वैल्यू आ जाती है आर टेंजेंट आर वाई ओवर आर एक्स, कैपिटल आर वाई ओवर आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू जिस जीसीएस सिस्टम आ गया है। दिस इज 4.0 ए इक्वेशन। नेक्स्ट है ये जो हमने यानी ये जो हमने ये दो इस दोनों एक्सिस को इस यानी जीसीएस को ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास एलसीएस सिस्टम आया। दोनों एक्सिस के जो हमारे पास ओरिजिन है ये कॉन्सिडेंट है इस पे, ये यानी दोनों का ओरिजिन हमारे पास एक ही है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने ये जो इक्वेशंस हैं वो इस जीसीएस सिस्टम की थी। नाउ वी वांट टू ट्रांस हम वी वांट टू वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स। मींस क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो है ये हमारे पास ग्लोबल सिस्टम में पहले ये पड़ा हुआ था, एक पॉइंट लाई कर रहा था, एंड नाउ वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द एक्सिस। अब हम जो है इसको ग्लोबल से लोकल ये स्मॉल एक्स वाई वाले में लेके जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ एलसीएस, ये वाला स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई विच इज नाउ रोटेटेड एट एंगल डेल्टा, ये एंगल डेल्टा से रोटेट हो रहा है, मैंने पहले भी बताई ये बात। To GCS XY, capital XY, तो following equations can be used। Rx is equal to Rx cos phi minus delta minus Ry sin delta। ये equations कुछ आप इस तरह की वहाँ भी एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी तो वहाँ आप देख के आए होंगे या पढ़ के आए होंगे। सो नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। अच्छा, डिस्टेंस जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हैंड रेज करें। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक दो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक पोजीशन एनालिसिस करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आए। जब भी आप पोजीशन मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो होता क्या है, होता यह है कि यानी आपका उस हर लिंक जब आपका कर रहा होगा तो सिस्टम आपका काफ़ी नहीं रहेगा उसकी पोजीशन मेजर करने के लिए। तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको ये चाहिए होगा कि आप जो है डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जरिए उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अरेंज करेंगे। अब देखिए, हमने एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जो कि आपका मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और दूसरा हमने पढ़ा है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं लोकल रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और उससे अगला जो है लोकल नॉन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो सबका पर्पस क्या है कि बेसिकली यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो पोजीशन सही हम लोगों ने इवेल्युएट करने के लिए हमने तीन चार जो है वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को किया। हम एक तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस केस में 4 बार लिंकेज एनालिसिस हमारे पास तीन ही काफ़ी हैं, एक लोकल रोटेटिंग, एक लोकल नॉन रोटेटिंग, और तीसरा जो है ना ग्लोबल कोऑर्डिनेट। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो हमारा मेन सिस्टम है। अभी हम ये जो हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट ए को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये जो फिगर आपको अभी नज़र आ रही होगी, इसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर जो होता है ना,
आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जब भी हम पोजीशन किसी भी पॉइंट की डिफाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स इसमें बेसिक हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ए है, और इसकी हम पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ टू सिस्टम्स लेके आ रहे हैं। जैसे इसमें हमने कहा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एलसीएस टू जीसीएस। तो अब इसमें एक पोलर फॉर्म है आपकी, पोलर फॉर्म में आपका जो है वो मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए होता है, और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म में जिसमें आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो अभी हम इसको लेके जाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या हम लोग एक ऐसा फार्मूला जो है वो लेके यानी इवेल्युएट करने के लिए जा रहे हैं, जो जिसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जो है वो उस फार्मूला की मदद से जो है ना, अगर एक सिस्टम में चीज़ें होंगी तो हम दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एलसीएस में एक लिंक की पोजीशन आ रही है तो उसको हम जीसीएस में लेके जा सकते हैं, या जीसीएस से एलसीएस में लेके जा सकते हैं। जीसीएस क्या आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एलसीएस आपका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर आगे चलते हैं। जी जी, कोई है क्वेश्चन? कुछ लोगों ने कहा है कि मैंने अभी उनके मैसेज पढ़े हैं कि स्क्रीन आवाज का मसला आ रहा है, या स्क्रीन का। मुझे बताएं, आवाज सही नहीं आ रही यूसुफ? सही आ रही है सर। और वीडियो भी सही चल रही है? यस सर। सर वो कुछ लोगों का इशू हो रहा होगा नेट की वजह से, वरना सही चल रही थी वीडियो। अच्छा चलें, ठीक है। तो मैं ये अभी दोबारा फिर प्ले करने लगा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो हैंड जरूर रेज करें। रिकॉर्डेड वीडियो चलाने का ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। आप लोग भी इसको तवज्जो से सुने, मैं भी उसको मैं खुद उसमें लेक्चर में शामिल हूँ, जो जहाँ भी मैं बार बार इसलिए रोक के चला रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आती जाए साथ साथ। एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी तो वहाँ आप देख के आए होंगे या पढ़ के आए होंगे। सो नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये टेबल में देखते हैं हम कि डिस्टेंस इज बेसिकली कंप्लीट लेंथ। जैसे ये आपका जो है ये यहाँ से इधर मूव करके जाएगा, कंप्लीट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्वांटिटी है, सॉरी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, और आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज ए मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज कवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है जब आपका इफ बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन चेंज इसमें भी होती है, डिस्टेंस में भी, और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों, इन दोनों में पोजीशन चेंज होती है। अभी बॉडी आइदर डिस्प्लेस कर रहा हो या किसी डिस्टेंस से मूव कर रहा हो। अब फिगर को हम लोग जो है ना नेक्स्ट फॉर्म में लेते हैं। ये फिगर नंबर ए है, दिस इज फिगर नंबर बी। अब हम देखते हैं कि फिगर नंबर ए शोज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अच्छा, ये इससे ना दो सिनेरियोज हमारे पास बनेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे बनते हैं। पोजीशन वेक्टर आर बी ए, ये आपका आर बी ए वेक्टर है फिगर नंबर बी के अंदर, बल्कि अभी हम फिगर नंबर ए को ही देख रहे हैं। दिस इज आर बी है ये, फ्रॉम ए टू। हम अगर आपने ग्रेड 12 की फिजिक्स में गालबन पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मींस आर बी ए होगा, तो इट विल बी आर बी माइनस ए, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी। सो पोजीशन वेक्टर आर बी ए डिफाइंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो नाउ दिस फिगर, अगर आप इस फिगर में, it defines the absolute position A and B with respect to global position। अब ये RB है, अगर ये आपका ग्लोबल सिस्टम में अगर हम इसको ले आए, ये कैपिटल Y और कैपिटल X में, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसको निकाल रहे हो, तो ये आपका पहला जो वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हम देखें तो ये होगा आर ए। मीन्स आर ए को अगर हम, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बेसिकली ये होना चाहिए आर ए ओ, और ये वाला होना चाहिए आर बी ओ। मीन्स दिस आर बी और ये वाला पॉइंट ओ। तो इन दोनों का हम आर बी ओ माइनस आर ए ओ करेंगे तो हमारे पास आर बी ए आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप पहले ही पढ़ के मैथमेटिक्स में या किसी दर्जे में आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा। सो नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं आर बी ए, दिस वन और दिस वन। आर बी ए कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोजिशन डिफरेंस इक्वेशन। वो कुछ इस तरह बनेगी, बी माइनस आर ए।
और आर बी बेसिकली आर बी ओ के इक्वल है, आर बी इज बेसिकली इक्वल टू आर बी एंड आर ओ। अगर हम जो है डिफाइन कर रहे होंगे, ये मैं पहले अभी कुछ लम्हे ही पहले मैंने ये बात की, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस ए, और आर बी इक्वल टू आर बी विच इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एक्स वाई रेफरेंस प्लेन। और आर ए क्या होगा, ये वाला आर ए इट शुड बी इक्वल टू आर ए माइनस आर ओ होगा। आर ए ओ इज इक्वल टू पोजीशन विद टू ग्लोबल रेफरेंस प्लेन। So this figure RB, फिगर नंबर सी, दिस वन, इसमें अगर आप देखें तो ये फिगर क्लोज फिगर है। इसमें जो है ना ये पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर ना यानी टेल्स हेड से हेड कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ आपका लूप क्लोज हो रहा है। इट मींस कि फिगर 4-2C शोज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन टू इक्वेशंस 4.1। ये वाला कंसेप्ट आप हेड टू टेल रूल में फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं। ये थ्री वेक्टर्स के लिए है, सॉरी 2 वेक्टर्स के लिए है। अब आपके पास आर बी ए वेक्टर था, इसको अगर आपने ये आर ए और आर बी को इस तरह करके इनको ऐड किया है कि ये क्लोज लूप आपके पास आ गया है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिगर 4-2B, दिस फिगर it may be represent single moving body, or it can all may be representing two independently moving bodies in the same direction। ये एक बॉडी भी हो सकती है, जैसे एक पॉइंट जगह इसकी पोजीशन चेंज हुई, बी पॉइंट पे चला गया, या ये दो इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज भी हो सकती हैं। वो कब होंगी, अब हम इसको देख लेते हैं। पहला है केस वन, इट विल बी अ सिंगल मूविंग बॉडी इन टू सक्सेसिव पोजीशन, यानी पहले ए पोजीशन पे थे फिर बॉडी बी पे चला गया। दिस विल बिकम केस ऑफ पोजीशन डिफरेंस, और इसमें इक्वेशन आपकी बनेगी आर बी आई इज इक्वल टू आर बी, दिस आर बी माइनस आर ए। आर बी ए शोज द पोजीशन डिफरेंस ऑफ सेम बॉडी, मीन्स ये जो रेड का आपका वेक्टर होगा ये शो कर रहा होगा पोजीशन डिफरेंस ऑफ सेम बॉडी। केस टू कौन सा होगा, जब ये पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी विल बी शोइंग टू इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज। पहले केस में तो ये एक ही बॉडी है, और वो एक बॉडी ही ए पॉइंट से उठ के दूसरे बी पॉइंट पे चला गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई है। बट इन सेकंड केस इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टू इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज। तो टू इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज, बट नाउ साइमल्टेनियसली दे आर मूविंग इन सेपरेट पोजीशन, साइमल्टेनियसली वो दूसरी पोजीशन पे आ गई हैं। तो दैट विल बी द केस ऑफ रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव मोशन। इस केस में भी इक्वेशन आपके पास आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए ही रहेगी जैसे थी, बट ये शोज पोजीशन ऑफ टू इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज। यहाँ आर बी शो कर रहा था पोजीशन डिफरेंस ऑफ सेम बॉडी, और दूसरी केस में ये शो कर रहा होगा कि पोजीशन ऑफ टू इंडिपेंडेंटली मूविंग बॉडीज। तो इट डिपेंड्स कि हमारा सिनेरियो कौन सा आता है। सो हम लोग आगे चलते हैं। प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है, हमने पहले हम जानते हैं कोई भी बॉडी अगर इफ इट इज गोइंग टू मूव इन स्ट्रेट लाइन इट इज प्योर ट्रांसलेशन, इफ इट इज गोइंग टू रोटेट इट इज प्योर रोटेशन। और अगर वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स मोशन बन जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द we are going to study the definition, more specific definition of pure translation. Pure translation define all the points of body if they have same displacement, जैसे कि वो then that motion will be called pure translation। और इसकी जैसे एग्जांपल है, in 4 bar linkage slider block is in pure translation। Next है during translation every line segment on the body moving body remains parallel to its original direction। इसमें रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होती है व्हेन द पाथ्स ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइंस, और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन होती है व्हेन द पाथ्स ऑफ मोशन आर कर्व्ड लाइंस, बट दीज लाइंस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी, अब प्योर ट्रांसलेशन में क्या, ऑल पॉइंट्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। इन प्योर रोटेशन डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। यहाँ प्योर ट्रांसलेशन में था ऑल पॉइंट्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, हियर डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि इसकी एग्जांपल है इन 4 बार लिंकेज क्रैंक एंड रॉकर आर इन प्योर रोटेशन। क्रैंक भी उसमें प्योर रोटेशन में होती है, और रॉकर भी आपका जो है वो क्रैंक आपकी 360 पे रोटेट कर रही होती है, रॉकर आपका किसी एंगल पे रोटेट कर रहा होता है। नाउ कॉम्प्लेक्स मोशन इन विच रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों ही हो रही होंगी। सो साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एग्जांपल इसकी इन 4 बार लिंकेज कपलर इज इन कॉम्प्लेक्स मोशन। सो अब हम आगे देखते हैं कि ये एक फिगर है जिसमें ये एक आपका लिंक है, लिंक ए बी, और इस जब ये बी फिगर में यहाँ पहुंचा है तो यहाँ कर्वीलिनियर इसमें ट्रांसलेशन, कर्वीलिनियर भी
ट्रांसलेशन करके यहाँ हो रही है, इसमें आपके पास फिगर नंबर सी में रोटेशन हो रही है, और फिगर नंबर डी में इसके आपके हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मोशन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू इलेबोरेट और स्टडी दिस फिगर। In figure number A, link AB is denoted by a position vector RBA. Is this we are going to denote this link with the help of position vector RBA in figure number A. So next है in figure number this figure number B. So link AB translates to a new position. ये प्योर ट्रांसलेशन में यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हुई, ये नई पोजीशन पे चला गया। Initially it was in RBA position, now it is its new position is RB prime A prime, or can translate by linear translation path के arrows नजर आ रही हैं, position vectors को कहते हैं। It translate by this this rectilinear path और इस curvy path dotted में नजर आ रहा है, दोनों तरीकों से जा सकते हैं। So curved path में जाए और it is following the straight track, but the condition should be this RA prime, ये जो रेड कलर का एरो है, should be equal to RB prime B. RA prime A should be equal to RB prime B, और as a result the link retains its angular orientation. अगर आप देखें तो जो यहाँ इस लिंक का एंगल है वही यहाँ होगा, अगर ये एंगल सेम रहेगा तो तभी तो ट्रांसलेशन हो रही होगी। तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ी कि ऑल द पॉइंट्स हैव सेम, अगर हम ये देखें ऑल द पॉइंट्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, मींस ओरिएंटेशन हमारी जो है सेम रही है इसमें। सो कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में लिंक का जो पाथ है वो दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वही इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी। नेक्स्ट है रोटेशन, ये इसमें आप यही वाला हमारा लिंक था ओरिजिनल, इसको अब हमने ना रोटेट कर दिया किसी एंगल पे, इसको कपलर बना दिया है। सो इन फिगर नंबर 4-3C इसके अंदर क्या हुआ, दिस वाज ओरिजिनली RBA, तो हमने इसको रोटेट करके नई पोजीशन इसकी आ गई RBA। सो रोटेशन जो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आया दैट इज RB प्राइम A। सो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करें इस बी पॉइंट से लेकर ये नए बी प्राइम पॉइंट तक, तो ये बनेगा आर बी प्राइम बी, मीन्स ये फाइनल पॉइंट है आर बी प्राइम, दिस इज इनिशियल पॉइंट, वो ये बी यहाँ आ जाएगा। सो हम अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं। पॉइंट ए रिमेन्स एट द ओरिजिन, दिस पॉइंट ए इज स्टिल एट द ओरिजिन, दिस विल बिकम द पिवट। इसका पॉइंट बी रोटेट करके बी प्राइम पे आ रहा है। सो पॉइंट ए रिमेन्स एट द ओरिजिन बट बी मूव्स थ्रू द पोजिशन डिफरेंस वेक्टर आर बी प्राइम बी। ये जो बी की मूवमेंट हो रही है उसको हम लोग जो है ना वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज दिस रेड कलर्ड आर बी प्राइम बी पोजिशन वेक्टर। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर बी प्राइम बी को हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे कि दिस वन, सबसे पहले ये लिंक जो है वो आर बी प्राइम बी इज इक्वल टू आर बी प्राइम ए, ये वाला हमारा आर बी प्राइम ए, दिस पोजिशन वेक्टर माइनस किसके इक्वल होगा, दिस आर बी ए, दिस आर बी प्राइम ए माइनस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी प्राइम बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये यानी फाइनल हमारी पोजीशन आर बी प्राइम ए आ रही है, और इसमें से आर बी ए यानी अगर इसको इक्वेशन के हम दूसरी जानिब ले जाएं, हेड टू टेल रूल लगाएं, ये ऐड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये बनेगा आर बी प्राइम ए इज इक्वल टू आर बी ए प्लस आर बी प्राइम बी। तो आर बी ए प्लस आर बी प्राइम बी, अब आर बी प्राइम बी के फॉर्म में निकालना होगा तो ये आर बी ए इस इक्वेशन के दूसरी जाने जाके यहाँ माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट एंगुलर इस इन फिगर नंबर सी बेसिकली एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ द लिंक इज चेंज, जो है ना एंगुलर रोटेशन हुई है हमारे पास। इन फिगर नंबर डी जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ रही है, देयर विल कॉम्प्लेक्स मोशन, जिसमें आपके पास जो है वो भी हो रही होगी, यानी रोटेशन भी हो रही होगी, ट्रांसलेशन भी हो रही होगी। तो हम पहले देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें हम देखें तो यहाँ जो है सबसे पहले ये लिंक जो है ना ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पे पहुंचा है, ए बी लिंक जो है ना नए पॉइंट पे पहुंचा है, दैट इज ए प्राइम बी प्राइम। इसकी पोजीशन सबसे पहले ये ट्रांसलेट किया है, देन फ्रॉम ट्रांसलेट टू ये देन इट हैज रोटेटेड फ्रॉम बी प्राइम टू बी डबल प्राइम,
अब ये नए पोजीशन पे आ गया है। तो अब हम देखते हैं सेम लिंक मूव्ड थ्रू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। इनिशियली ये RBA था, जब ये यहाँ पहुंचा तो ये इसकी ये कुछ इसकी जो है ना कुछ ना कुछ वो चेंज होके RB प्राइम यानी चेंज हो गया, RB प्राइम A प्राइम हो जाएगा। तो हम आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है रिजल्टिंग। जब ये इससे मूव किया रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट विल बी, जैसे कि इसमें आपके पास ये एट द सेम टाइम ट्रांसलेट भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट आएगी। द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम रोटेट फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट। पहले आप रोटेट कर दें फिर ट्रांसलेट करें, या आप पहले ट्रांसलेट करें फिर रोटेट करें। जैसे इस केस में हमने पहले इसको ट्रांसलेट करके इस लोकेशन पे ले गए हैं, देन उसको हमने रोटेट किया है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। दोनों फॉर्म दोनों तरीकों से चाहे आप जिस तरीके से मर्जी कर लें आपके पास कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट ही आएगी। नेक्स्ट है टोटल कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी। फाइनल जो ये लिंक है ना, देखें ये इस वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट, ये जो बी डबल प्राइम पे आ रहा है, तो हम ये इसके हिसाब से निकालेंगे। अगर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बी, ये जो आपका ओरिजिन बी है इसके हिसाब से अगर हम बी प्राइम के निकालें तो आर बी प्राइम बी जो आपके पास आ रहा होगा आर आर बी डबल प्राइम और विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, इस पॉइंट से के हिसाब से निकालें। ये अभी इस स्टेप में हम आर बी प्राइम एक बी प्राइम वाला है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग इस बी पॉइंट के हिसाब से निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हम ना इस पॉइंट के हिसाब से निकालते हैं आर बी प्राइम बी। अब देखें पहले ये बी पॉइंट उठ के इस पॉइंट पे पहुंचा बी प्राइम पे, देन बी प्राइम से नाउ लिंक है शिफ्ट टू दिस बी डबल प्राइम। तो हमारे पास पाथ क्या बनेगा, आर बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट बी, बी प्राइम तो ये वाला पॉइंट है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू सम ऑफ आर बी प्राइम बी, ये पहले वाला ये पॉइंट आ गया। देन इसके यहाँ आपके पास ट्रांसलेशन, देन फ्रॉम दिस पॉइंट से नेक्स्ट विल बी, तो ये बनेगी प्लस आर बी डबल प्राइम बी प्राइम, ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी जिसमें दिस द लोकेशन ऑफ बी आर बी डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू हमने बी प्राइम निकाल लिया है। इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर बी डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो वो कैसे निकलेगी हमारे पास आर बी डबल प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ए। तो सबसे पहले क्या किया कि ये वाला पॉइंट जो था ना ये यहाँ से शिफ्ट हुआ ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ये आ जाएगा आर ए प्राइम ए, वो हमने यहाँ लिख दिया। और देन उसके बाद ये अपनी जगह रहा, लेकिन ये लिंक एज ए शिफ्ट कर गया, तो हमने ये आपके पास ये नया पोजीशन वेक्टर आएगा आर बी डबल प्राइम ए प्राइम, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। द न्यू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट बी प्राइम ही हमारा प्राइम फोकस वाला पॉइंट है, लेकिन जो फंडामेंटल चाहिए पॉइंट इन दिस इक्वेशन वी आर टू अटेन द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, रेड कलर में आपको शो हो रहा है। और इस इक्वेशन में वी आर गोइंग टू अटेन द पोजीशन वेक्टर आर बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। सो रोटेशन ट्रांसलेशन एंड कॉम्प्लेक्स मोशन कैन बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग थ्योरम, जिसको हम कहते हैं आयलर्स थ्योरम और चेजर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम क्या होता है, जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स इज रोटेशन अबाउट सम एक्सिस एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑन प्योर रोटेशन। और चेजर्स थ्योरम में ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशन on body and rotation of body about axis through that point, और it is applicable to complex motion। अब चेजल थ्योरम में अगर देखें हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू सम, ये सम होगा किसका, पहले ट्रांसलेशन ऑफ एनी पॉइंट देन उसकी रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट सर्टेन एक्सिस। पहले ट्रांसलेशन हो रही है, जैसे इसमें यहाँ ये वाला जो बी पॉइंट था ये एज ए होल लिंक ट्रांसलेट करके इस पॉइंट पे ऐसे पहुंचा, देन उसके बाद ट्रांसलेशन हुई। तो इस केस के ऊपर आपके पास चेजर्स थ्योरम लग रहा होगा ये वाला, और आयलर्स थ्योरम लगेगा जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स इज रोटेशन अबाउट सम एक्सिस। अब देखिए जैसे ये वाला सी पे हमारे पास जो है ना आयलर्स थ्योरम लगेगा, इसकी एक पॉइंट पिवट बन जाएगा ये, और इसके अक्रॉस बी पॉइंट हमारा रोटेट कर रहा होगा, इस तरह कपलर की मोशन आ रही होगी। सो ग्राफिक पोजीशन एनालिसिस, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
कोई किसी का क्वेश्चन है? जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करें प्लीज। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, बेसिकली हम लोगों ने जो है वो एक ही लिंक था, एक उसको एक पॉइंट जब ट्रांसलेट कर रहा था लिंक, तो उस वक्त हम लोगों ने जो है उसकी पोजीशन का एनालिसिस किया। जब वही लिंक जो है ट्रांसलेट करने के बाद रोटेट हुआ, तो उसका फिर अलग से जो है पोजीशन का एनालिसिस करके उनको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर उसको कैलकुलेट या इवेलुएट किया है। तो बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप लोग तो नहीं पूछ रहे अभी? वीडियो जो है उसके अंदर 23 सेशन वालों ने पूछा है, उनका क्वेश्चन देखें। सॉरी, 22 सेशन ने, तो उनका क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। जी हाँ, बोलें, क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। जो पहले आपने स्लाइड पढ़ाई है, इसमें जो नीचे वाला केस है ना, जिसमें वो केस 2 है, वो रीड कर दे काइंड। कौन से वाला, मुझे एक दफा बताएं। ये सर वाला? ये स्लाइड पीछे करें ना, आपको बताते हैं। ये वाला? ये यस वाला या सर, ये कोई जो और? है यस सर, स्लाइड ये है, ये जो है अपना द न्यू एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट बी वाला, जिसमें ओरिजिन ए रखा हुआ है, ये रिपीट कर दे। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं किया। बस आर बी डबल प्राइम पॉइंट आ गया है। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट, इसकी हमने पोजीशन निकालनी है। इस पहले वाली जो इक्वेशन अभी आपको नजर आ रही है, वी आर बेसिकली इवेलुएटिंग द पोजीशन ऑफ दिस बी डबल प्राइम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बी। बी को हम रेफरेंस मानते हुए इसकी निकाल रहे हैं। तो ये इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, यानी ये बी पॉइंट पहले डिस्प्लेस करके इस बी प्राइम पॉइंट पे पहुंचा, तो उसका पोजीशन वेक्टर बना आर बी प्राइम बी, वो हमने यहाँ ये पहले टर्म लिख दी। देन दिस बी प्राइम इज नाउ, ये इसने रोटेट करके अब बी डबल प्राइम बना, तो उस केस में पोजीशन वेक्टर आ रहा है आर बी डबल प्राइम और बी प्राइम सिंगल प्राइम के साथ, वो हमने यहाँ इस टर्म को लिख दिया है। अच्छा, जो आपके पास नेक्स्ट है ये आर बी प्राइम, ये ए पॉइंट से, ए पॉइंट के हिसाब से भी तो आ रहा होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मोशन है। यहाँ पहले वाली इक्वेशन तो सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए आई है, नेक्स्ट इज फॉर रोटेशन के लिए भी हमने निकालनी है। सॉरी, रोटेशन नहीं, हमने एक पॉइंट का तो इससे निकाल लिया है बी का, लेकिन एज ए होल इस ये भी तो मूवमेंट इसमें भी तो हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, आर बी प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, तो इसमें भी पहले ट्रांसलेशन, वो आर ए है वो शो कर रहा है आर ए प्राइम ए, तो हमने आर बी डबल प्राइम ए इज इक्वल टू आर ए प्राइम ए लिख दिया। आर बी डबल प्राइम ये वाला पॉइंट था फोकस जिसपे हम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ए। इसके लिए सबसे पहले ट्रांसलेशन वाला पोजीशन वेक्टर आया, वी हैव रिटन दिस पोजीशन वेक्टर हियर एज ए आर ए प्लस किसके करेंगे, दिस पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास नेक्स्ट है आर बी डबल प्राइम ए प्राइम, यानी ये पॉइंट अब डिस्प्लेस कर, डिस्प्लेसमेंट इसमें हुई है लेकिन रोटेशन की फॉर्म में हुई है। वो रोटेशन थोड़ा सा रोटेट करेगा, ये तो पूरा रोटेट यहाँ करके आ रहा है, ये वाला थोड़ा सा रोटेट करके इस पॉइंट पे ही जो है ना लिंक शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फाइनली आर बी डबल प्राइम ए प्राइम लिख देंगे। जी हाँ जी, आगे चलें, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, यहाँ तक पढ़ लिया है। पार्ट ए हमारे लेक्चर का पूरा हो गया है, पार्ट बी अब हम लोग कर लेते हैं। पार्ट बी इज ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस। जी नेक्स्ट है ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस। अच्छा, ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस ऑफ ग्राफ ऑफ के, इसमें वट एवर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स,
we have calculated the length of input link A. कपलर की लेंथ हमने निकाली, length of rocker, length of ground. By using geometrical instruments, हम लोगों ने we have calculated many I think 7 to 8 different examples in previous 2 lectures. और हम लोगों ने उसमें ग्रेशॉफ लॉ देखा कि either ग्रेशॉफ लॉ is applicable or not. फिर हमने क्या किया कि लेंथ ऑफ इनपुट यानी डिफरेंट लिंक्स को हमने लेंथ्स को निकाल लिया. तो what are the knowns from this kinematic synthesis? Basically we have calculated the lengths of different links. So length of input link जो आपकी crank होगी that will be denoted by small a. Length of coupler जो coupler is basically link number 3 उसको हम B से denote कर रहे होंगे. Length of rocker will be denoted by C जो कि आपका link number 4 होगा. And length of ground that is link number 1 it is denoted by D. Now from the kinematic analysis, ये kinematic synthesis से आया है. From kinematic analysis we know that angle of input link O2 theta 2 is unknown, उसको हम find कर लेंगे. Now this for to draw the 4 bar to analyze the for the display for the purpose of finding analyzing the displacement analysis of performing the displacement analysis of 4 bar mechanism. एंगल ऑफ कपलर थीटा 3 एंड एंगल ऑफ इनपुट रॉकर थीटा 4 जो है ना ये हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता कि ये कितना होगा. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करना है. इसका पहला तरीका तो ये है ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस. मैंने एक स्लाइड पे पहले भी बताया था कि ग्राफिकल से भी आ सकता है भी आ सकता है. तो हम जल्दी जल्दी ग्राफिकल को देख लेते हैं. इसी 1-2 स्लाइड्स में ये खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद जो मेन है वो हमारा एनालिटिकल मेथड आ जाएगा. सो एनी 1DF लिंकेज और 4 बार मैकेनिज्म जैसे ये हमें शो हो रहा है, it requires only one parameter to completely define the position of all links और वो है आपके इस input crank angle theta 2. So it is usually chosen is the angle theta 2 of input link crank if link lengths are known. अगर हमें link number 3 की लेंथ भी पता है, 2 की भी पता है, 4 की भी पता है, then theta 3 is equal to theta 4 is equal to question mark means this will be unknown. Note that link number 1, this link number 1, it is grounded link number is crank driven link number it is coupler and link number 4 is output link. Next are theta 3 and theta 4. This is theta 3 which is basically angle of link number 3. This is theta 4 which is angle of link number 4. So theta 3 and theta 4 can be found easily by protector if we graphically draw linkage to scale. तो हमने अगर आप गौर करें we are going to find out the theta 3 and theta 4. थीटा 4 तो हमारा ग्लोबल जीसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट थीटा 3 विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू LNCS मींस लोकल नॉन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये स्मॉल एक्स वाई जो हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं ऑल द लिंक एंगल्स आर मेजर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हमने ये सारे लिंक एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस आइदर थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4. We have taken all the angles with in anti-clockwise direction and with respect to positive x-axis. LNCS, this system small xy is created at point A to measure theta 3. Next how to calculate how to find out the graphical solution of this problem. तो हम लोग 4 link lengths length A किसकी होगी link number 2 की, length B will be of link number 3, length C will be of link number 4 and length D will be of link number 1. means इसकी जो लेंथ होगी वो A कहलाएगी लिंक नंबर 2 की, यहाँ B की जो लेंथ होगी लिंक नंबर 3 की B कहलाएगी, लिंक नंबर 4 की लेंथ विल बी D एंड लिंक नंबर 1 की जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी, दैट इज बेसिकली सॉरी लिंक नंबर 1 की जो लेंथ होगी वो D होगी आपके पास, और लिंक नंबर 4 की जो लेंथ है बेसिकली जो कपलर है आपका इसकी जो लेंथ है वो C होगी एंड एंगल ऑफ इनपुट क्रैंक जो होगा या लिंक होगा दैट इज थीटा 2. So how to graphically draw the solution of this problem. Draw link number 1 which is grounded link having length D. Along x-axis हमने इसको draw कर दिया O2 से O4. O means pivot of crank to pivot of crank and O4 mean pivot of link number 4 which is basically our rocker. So two endpoints हैं इस line के O2 and O4. D इसकी length है. Now taking O2 as origin, इसको we are taking O2 as origin, we are going to draw an input link by drawing an arc, and arc length should be equal to this one A, length of crank link number 2.
सो एट इनपुट एंगल थीटा 2 के ऊपर हमने ये ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट स्टेप, by taking A as center, we are going to draw an arc. We will open a compass equal to the link length B and draw an arc in both directions. Top side पे भी बना देंगे, bottom side पे भी बना देंगे. Next step, to draw the link number 4, we will finally take O4 as center and open link number C. ऊपर वाले step में 4 में we have take open the compass equal to length B. In fifth step, we are going to open our compass equal to length of link length C and draw an arc by taking O4 as center. इस वाले स्टेप में हमने A को सेंटर मानते हुए आर्क लगाई थी, और फिफ्थ स्टेप में हम लोग जो है ना O4 को कंपास सेंटर लेते हुए जो है ना हम एक आर्क ऊपर भी जाए लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे। नेक्स्ट है कनेक्ट O4 को B से मिला दिया एंड देन B to A, और इस तरह आपकी जो है ना 4 बार लिंकेज कंप्लीट हो जाएगी। मेजर द एंगल ऑफ लिंक्स 3। अब आप यहाँ जो है ना स्मॉल LCS सिस्टम लगाएंगे, लिंक आप एंगल मेजर कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड O4 का भी एंगल आप निकाल लेंगे। दिस ग्राफिकल सोल्यूशन इज ओनली वैलिड फॉर द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल थीटा 2 ऑफ द क्रैंक। ये किसी स्पेसिफिक एंगल पे बन सकता है। सपोज एट दिस मोमेंट क्रैंक हैज 45 डिग्री एंगल, तो ये एक फिगर बनेगी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एंगल, हमारे पास थीटा 3 थीटा 4 कितना होगा फॉर जब आपका 45 से 46 एंगल होता है, अगेन नई फिगर बनानी पड़ेगी। जब 46 से 47 एंगल हो जाता है क्रैंक का, तो नई अगेन फिगर बनेगी। सो क्रैंक इनपुट क्रैंक इज गोइंग टू रोटेट विद इन 360 डिग्री, मतलब उस एंगल में वो रोटेट कर रहा है। तो फाइनली यू हैव टू अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट द 360 फिगर्स। तो ये बहुत मतलब लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। सो फॉर ईच एडिशनल पोजीशन एनालिसिस, complete linkage must be redrawn again and again, which become burdensome with increment of every 1 degree or 2 degree angle. So alternate solution क्या है? Derive an analytical solution for theta 3 and theta 4 that can be solved by computer. सिंपल हम इसको जो है फार्मूलाज निकाल के एक्सेल में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास जो है ना आंसर आ जाया करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे मतलब करते हैं। अच्छा, दिस इज क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ओपन। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि नीचे हमने क्यों जो है वो इसको मतलब क्रॉस लगाया है। दिस हम इसको डिटेल में तो थोड़ी एंड पे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन जो है इसका एक दफा ये देख लेते हैं कि दिस इज ओपन कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज लिंक नंबर 3 कपलर एंड दिस इज लिंक नंबर 4 विच इज रॉकर। इफ लिंक नंबर 3 एंड 4 दे आर नॉट, सॉरी मैं यूं कहना चाहिए, दिस इज लिंक 2, sorry, this is link number 3 which is coupler. If coupler is not intersecting link number 1 grounded link, means coupler उसको क्रॉस नहीं कर रहा है grounded link को, this will configuration of 4 bar linkage is called open linkage. And if this link number 3 is 3 जो कपलर है, ये जो डॉटेड फॉर्म में बना हुआ है, इफ इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस ग्राउंडेड लिंक नंबर 1, दिस कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ फिगर ऑफ द लिंकेज विल बी कॉल्ड क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 बार लिंकेज। ये अभी हम थोड़ी देर में मजीद डिटेल में कुछ स्लाइड्स के बाद आने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द फार्मूला। तो वेक्टर्स में भी अब इसकी डेरिवेशन की जानिब जा रहे हैं। डेरिवेशन जब खत्म होगी तो हमारा जो है ना आज का लेक्चर भी वाइंड अप हो जाएगा। So vectors may be represented or defined in polar coordinates और Cartesian coordinates. ये हम लोग पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। मैंने शुरू में आपको जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है आपके पास के, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मैग्नीट्यूड और एंगल आपको चाहिए होता है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी रिक्वायरमेंट इज वी शुड नो दैट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। सो हम क्या कर रहे हैं, दीज फॉर्म यूजिंग इक्वेशन 4.0 ए, जो कि ये वाली इक्वेशन है। सो पोजीशन वेक्टर्स ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ 4 बार लिंकेज। ये आपकी 4 बार लिंकेज थी जिसमें ये आपकी लिंक नंबर ए जो था, ये लिंक नंबर 2 था, वो क्रैंक थी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोगों ने मैंने पिछली स्लाइड पे आप लोगों ने देखा है, वो हम लोगों ने जो है उसको एनालाइज कर लिया कि ग्राफिकली अगर हमने जो है लिंकेज को ड्रॉ करना हो तो कैसे करते हैं। तो आपने देखा कि वो उसका सिंपल एक दो का तरीका है, उसी में ही हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो ग्राफिकली कंस्ट्रक्शन वाला हमने तरीका जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है, गालपन चैप्टर नंबर 3 है,
जिसमें हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम लोगों ने किया है। तो देखें उसमें पूरा चैप्टर ही हमारा ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर था। हम लोग ऐसे कपलर को मूव करवा रहे थे, लिंकेज को एज ए कपलर के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे थे। 4 बार लिंकेज का डिज़ाइन किया, 6 बार का किया। फिर ऑनलाइन लेक्चर में साथ साथ मैंने ये किया, साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म डिज़ाइन किया, फिर क्रैंक शेपर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को डिज़ाइन किया। तो उस सारे का सारा वो ग्राफिकल मेथड था। तो अब ग्राफिकल मेथड का, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम लोग उसमें सिंपल, यानी अगर 360 डिग्री पे क्रैंक रोटेट कर रही है तो हमें 360 फिगर्स ही बनानी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिव वर्क हो जाता है। तो उसका आसान हल ये है कि हम एनालिटिकल जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फार्मूलाज इवेलुएट करके इक्वेशंस बनाएंगे, उसको एक्सेल के अंदर पुट करेंगे, एंगल बदलते जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमें जो है ना हर पॉइंट के ऊपर जो है ना उसकी एंगल की पोजीशन भी और उस लिंक लिंक लेंथ तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एंगुलर पोजीशन, वो स्पेसिफिकली एक्सेल से ही हमारे पास आ जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग जो है ना फार्मूला इवेलुएट करेंगे। अभी अगले 20-25 मिनट ये फार्मूला की इवेल्यूएशन चलेगी। जब ये फार्मूला इवेलुएट हो जाएगा तो फिर हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है, तो आगे चलते हैं। ये जो लिंक जिसकी लेंथ b है, ये कपलर था आपका, और दिस r4 पोजीशन वेक्टर जो है ये इट इज बेसिकली शोइंग द रॉकर। और जो ये आपका ग्राउंडेड लिंक था, इसकी लेंथ d थी, और ये इसको हमने डिनोट कर दिया r1 से। सो इन दिस फिगर वी हैव डिनोटेड our whole four different position vectors। हम position vector की मदद से डिनोट कर दिया है। सो पोजीशन वेक्टर्स इन 4-6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एनी ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। हम इसको जो है ना इन पोजीशन वेक्टर, चाहे r1 पोजीशन वेक्टर है, r2 है, r3 है, r4 है, इसको हम लोग जो है पोलर फॉर्म में करेंगे तो we have then magnitude and angle will be required if we are going to represent in Cartesian form। वो चाहिए होगा एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई और जे प्राइम के, मतलब ये फॉर्म में आ रहा होगा। सो दिस इक्वेशन 4.3 है, दिस वन, ये जो इक्वेशन हमें नजर आ रही है, इट यूजेस यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे टू रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई वेक्टर कंपोनेंट डायरेक्शंस इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट है फिगर 4-7, दिस फिगर। इसमें हमने क्या किया है, ये यूनिट वेक्टर्स आई और जे को ना हमने अलोंग एक्स वाई कंपोनेंट्स के फॉर्म में जो है ना शो कर दिया है। सो इट दिस फिगर इज शोइंग आर ए पोजिशन वेक्टर नोटेशन फॉर आर ए जो है ना पोजिशन वेक्टर को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस, और आई जे यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में। सो नेक्स्ट है इक्वेशन 4.3 बी, दिस इक्वेशन, ये जो आपको यहाँ नजर आ रही है, दिस वन, दिस इज गोइंग टू डिनोट, ये ऊपर वाली इक्वेशन आपको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दे रही है, और दिस बॉटम, ये जो आपकी 4.3 बी इक्वेशन है, इट इज गोइंग टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन। यानी हमने यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में क्या होता है कि आपके पास ना आयोटा आ जाता है। आयोटा क्या होता है? इट इज इसकी वैल्यू होती है √-1 के इक्वल। सो यहाँ इस बुक में जो है ना आयोटा की जगह उसने जे को यूज किया है। बेसिकली जे आयोटा ही है, लेकिन बुक वाले ने जे यूज किया है, तो हमें भी वही यूज करना पड़ेगा। सो in this in complex number form x direction component is called real portion, r cos theta जो है रियल पोर्शन बन जाएगा, और j के साथ जो कंपोनेंट या आयोटा के साथ आ रहा होगा, जो कि इस केस में 4.3 बी इक्वेशन में r sin थीटा है, इट विल बिकम इमेजिनरी पोर्शन। तो कम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एक रियल पोर्शन होता है, एक इमेजिनरी पोर्शन होता है। सो हम अब क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट कम्स ड्यू टू यूज ऑफ नोटेशन जे। जे जो है ना आयोटा है बेसिकली, और इसकी वैल्यू होती है √-1, और इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड न्यूमेरिकली। सो नेक्स्ट है दिस इमेजिनरी नंबर, ये जो √-1 है, इज यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑपरेटर, नॉट एज ए वैल्यू। सो अब हम ये आयोटा को देखते हैं कि अगर आयोटा को हम पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है हमारे पास। सो ये आपका एक पोजीशन वेक्टर है, जिसको आर ए कह रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के फॉर्म में यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले एक फिगर को देखते हैं, फिर complex number representation of a position vector।
अच्छा, पिछली फिगर में आपने देखा यहाँ हमने ना पोजीशन वेक्टर्स शो किए थे। ये पोजीशन वेक्टर आई था, ये सॉरी यूनिट वेक्टर्स शो किए थे। आई यूनिट वेक्टर था और जे यूनिट वेक्टर था। और यहाँ हमने आर साइन थीटा जे और ये आर cos थीटा आई फॉर्म में इसको शो कर दिया था। बट इन नेक्स्ट फिगर वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस यूनिट वेक्टर्स विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इसको हम इसमें रिप्लेस कर दिया है। तो हमने इस 4.3b इक्वेशन में रियल पार्ट था आर cos थीटा, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम शो कर देंगे ये आर cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट था आर साइन थीटा, वो हमने जो है ना यहाँ जे आर साइन थीटा यहाँ इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग शो कर दिया। बाकी पोजीशन वेक्टर हमारा वही रहा है। सो 4-8a figure shows the complex plane in which real axis is x component of vector which do not contain j operator, and imaginary axis, यहाँ real axis में कोई j operator नहीं है आपका, and in imaginary axis it contains y component of vector which contains j operator. नेक्स्ट है इमेजिनरी एक्सिस, ये जो आपका इमेजिनरी ये वाला एक्सिस है विद जे ऑपरेटर। इमेजिनरी एक्सिस containing j operator is at 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है फ्रॉम दिस रियल एक्सिस। अच्छा, अगर हम पोजीशन वेक्टर हमारे पास, अगर इस केस में यहाँ एक पोजीशन वेक्टर है जो लाई कर रहा है ऑन रियल एक्सिस, दिस आर ए इज गोइंग टू लाई ऑन रियल एक्सिस। इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई मल्टीप्लाई जे, इससे मल्टीप्लाई कर दें जो कि आयोटा है बेसिकली। इफ हम क्या करेंगे अगली स्लाइड के ऊपर, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई जे विद पोजीशन वेक्टर आर ए। this RA position vector was basically lying on positive x axis or real axis on positive side। तो हम ये देखते हैं वेक्टर RA is equal to R is directed along positive real axis, ये यहाँ वेक्टर कुछ इस तरह पड़ा हुआ है ये वाला। नेक्स्ट है when we are going to apply J, वेक्टर RA is multiplied by J operator, means iota से जब हमने मल्टीप्लाई किया, then position vector RA will rotate by 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करेगा, ये यहाँ एरो शो हो गया ब्लू कलर का। अगेन अब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर की आ जाएगी दैट विल बिकम जे आर। इफ अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, इन नेक्स्ट स्टेप वी आर अगेन गोइंग टू मल्टीप्लाई जे, तो ये बन जाएगा जे स्क्वायर आर, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। वेक्टर आर सी, जो इससे आपके पास नया आर सी वेक्टर आ जाएगा, यहाँ आर बी आया, ये आर ए वेक्टर था। इफ आर ए वेक्टर के साथ आपने जे मल्टीप्लाई किया, हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो आर ए वेक्टर के साथ आपने जे मल्टीप्लाई किया तो ये जे आर बन गया ये, और ये नया पोजीशन वेक्टर आ गया आर बी। अब इसके साथ अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई जे, देन इट विल रिजल्ट इन ए न्यू वेक्टर विच विल बी आर सी, और उसकी फॉर्म होगी जे स्क्वायर आर, और ये जो है ना नेगेटिव साइड ऑफ रियल एक्सिस पे प्लेस हो रहा होगा, ये ग्रीन कलर के आपको एरो में से शो हो रहा होगा। और जे स्क्वायर आर इज इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि जे स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर जो है वो आपके पास अंडर रूट माइनस वन का जो आपके पास वो है इक्वल होता है अंडर माइनस वन का जो स्क्वायर, इसलिए माइनस गया। इन नेक्स्ट स्टेप अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई जे, तो ये जे और फाइनली ये 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा और यहाँ वेक्टर रोटेट होके अलोंग नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस आ जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या शो किया है कि जब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई जे आयोटा विद पोजीशन वेक्टर, तो उसका फेस शिफ्ट 90 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है उसमें, और वो रोटेट करता जा रहा है। सो अब हम देख आगे चलते हैं टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। ये आपकी पोलर फॉर्म है विद ई प्लस माइनस जे पावर जे थीटा की पावर जो है इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म, जो कि आपकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होगी cos थीटा प्लस माइनस जे साइन थीटा के फॉर्म में होगी। सो एडवांटेजेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्लेनर वेक्टर्स बाय कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन, क्या फायदा होगा, मतलब हमने इन टर्म्स ऑफ जे या आयोटा के फॉर्म में लिए हैं। एनी 2D वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्पैक्ट पोलर नोटेशन रिप्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इसके इक्वल आ जाएगी। और इसका फायदा ये होगा आइलर्स आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं ये हमारी आइलर आइडेंटिटी कहलाती है। दिस इक्वेशन 4.4 है। इसका फायदा ये है कि इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, बजाय इसके कि हम जो है ना यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के डेरिवेटिव लें साइन थीटा उससे, तो वो चीजें आगे यानी मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। उससे बेहतर ये है कि if we are able to convert
दिस जो आपके पास ये है कार्टेशियन फॉर्म है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस ई पावर प्लस माइनस जे थीटा। तो इसका फायदा ये होगा कि हम जब डेरिवेटिव लिया करेंगे तो इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है। डेरिवेटिव ऑफ आइलर्स आइडेंटिटी होता है, अगर इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो जे ई की पावर जे थीटा, यानी हम आसानी से इसको डेरिवेट कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होगा? ये यूज तब होगा कि जब हम पोजीशन निकाला करेंगे, तो पोजीशन को डेरिवेट करके वेलोसिटी आया करेगी, वेलोसिटी को डेरिवेट करके हमारे पास जो है एक्सेलरेशन आया करेगी। तो बेसिकली अगर हम जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय इस पोलर फॉर्म में ले आए, तो बेसिकली वो डेरिवेटिव्स जो हमें आगे फाइंड करने हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अल्टीमेटली, तो वो आसान हो जाएंगे हमारे पास। So Euler identity is very easy to differentiate or integrate as it is its own derivative. So next है complex number notation for vectors will be used to develop and derive the equations for position, velocity and acceleration of linkages, जो कि अब next slide से शुरू हो रही हैं हमारी। So next है हमने ये जो पिछली स्लाइड पे ये फिगर देखी थी, ये वाली फिगर। Now we are going to basically this figure is ये इस in this figure we are four position vectors are shown, and these four position vectors are basically four different links of 4 bar mechanism. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन वेक्टर्स में हम लोगों ने लिंक्स को ऐसे प्लेस किया है कि इसका एंगल जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है और टेल के अलोंग आ रहा है। ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। दिस वन कंसीडर ए 4 बार लिंकेज। ये हमारी डेरिवेशन शुरू हो रही है, जब ये डेरिवेशन खत्म होगी तो आज का हमारा लेक्चर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। सो कंसीडर ए 4 बार लिंकेज हैविंग लिंक लेंथ ए, लिंक नंबर 2 की लेंथ ए है, लिंक नंबर 3 की लेंथ इज बी, लेंथ ऑफ लिंक नंबर 4 इज सी, लेंथ ऑफ लिंक नंबर 1 इज डी, मींस ग्राउंडेड लिंक जो आपका होगा उसकी लेंथ डी होगी। लिंक नंबर 2 की लेंथ, लिंक नंबर 2 मींस क्रैंक, क्रैंक की लेंथ इज ए से डिनोट कर रहे हैं, एंड एंगल ऑफ इनपुट लिंक और क्रैंक इज थीटा 2। सो लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड एज पोजीशन वेक्टर्स, ये जिस तरह इस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, और ये क्लोज फिगर बन रही है। इस पॉइंट के ऊपर आके एरो से एरो जो है ना वो कंसाइड कर रहा है। सो लेंथ ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू लिंक लेंथ। अगर आप गौर करें, ये जो हमने पोजीशन वेक्टर्स R1 R2 R3 R4 लिया है, इन लेंथ ऑफ दीज पोजीशन वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू लिंक लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर्स आर प्लेस इन ए वे सो दैट एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर रूट। थीटा 2 भी ये थीटा 2 इज द लेंथ एंगल ऑफ लिंक नंबर 2, और ये इसकी रूट से मेजर हो रहा है। थीटा 3 भी लिंक नंबर 3 की रूट से मेजर हो रहा है। थीटा 4 भी लिंक नंबर 4 की रूट से मेजर हो रहा है। सो पोजीशन वेक्टर्स आर प्लेस इन ए वे सो दैट एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर रूट एंड लूप इज क्लोज्ड। प्लेस आके क्लोज हो रहा है एट बी पॉइंट। तो हम यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, नहीं वो नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाली है। सो वी कैन टेक थीटा 2, दिस थीटा 2 एंड थीटा 4 एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ आवर वेक्टर लूप। लेकिन मोस्टली हम लोग जो है ना रेफरेंस पॉइंट ये क्रैंक वाला एंगल थीटा 2 ही ले रहे होते हैं। सो नेक्स्ट है in figure 4-6 theta 1 is equal to 0. Why theta 1 is equal to 0? Because this grounded link is basically lying on x axis of GCS system, जो हमारा ग्लोबल सिस्टम था। नेक्स्ट है, सो अप टिल नाउ बेसिकली नोन हमारे पास क्या है, ये लिंक लेंथ हमें चारों लिंक लेंथ नोन है, और ये जो हमारे पास क्रैंक एंगल थीटा 2 है ये भी नोन है। सो लिंक लेंथ ए बी सी डी लिंक लेंथ है, एंड एंगल ऑफ इनपुट लिंक थीटा 2 इज नोन, but currently theta 3 and theta 4 are unknown. So we are going to perform, we are going to derive a formula to calculate theta 3 and theta 4 for any angle of theta 2. हम theta 2 का एंगल पुट करते जाएंगे और 3 और 4 की वैल्यूज आ जाया करें। इसके लिए हम फार्मूला इवेल्युएट करने जा रहे हैं। सो बाय यूजिंग दिस फिगर, जो हमारे पास ये फिगर है, we are going to we have written a we are going to write a vector loop equation which sum all the vectors in a loop. अब देखें ये हमारे पास जो ये थी, हमने इसको जब ऐड किया, बेसिकली हमने ये ऐड इस तरह किया है कि लूप क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आके बी पॉइंट पे ये लूप क्लोज हो गया है वेक्टर्स का। सो हमने इस तरह इसको ऐड किया है कि R1 की जो है ना हमने इन्वर्टेड फॉर्म में ले आए हैं इसको, तो यानी आपने R1 जो है लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे ले आए हैं। दैट्स वाई R2 R3 जो है ये पॉजिटिवली, और जो इनकी डायरेक्शन है वो दूसरी, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं R2 और R3, बट R1 एंड
R4 are in anti-clockwise direction, that's why we have used हमने जो है ना वो नेगेटिव साइन के साथ उनको जो है ना कंसिडर कर लिया है। तो हम अब आगे क्या करते हैं, मतलब ये हम इसमें आप ये नहीं जाएंगे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है ना वो पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज के साथ क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल, दिस नेगेटिव sign is just showing that we are going to take R1 and R4 in opposite direction to this R2 and R3। सिंपल इसका ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप उससे कंफ्यूज नहीं हो के ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो वाला चक्कर यहाँ नहीं है, ये एंगल नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। सो नेक्स्ट है this R2, R3, R4, R1, these position vectors can be converted to to complex numbers notation। complex number notation में by using link lengths and respective angles। वो कैसे करेंगे, हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होगा, वो उसकी लेंथ होगी हर वेक्टर की जो, या उस हर लिंक की, और दूसरा उसका एंगल चाहिए होगा। जैसे इसका θ2 एंगल है, इस लिंक नंबर 1 का θ1 एंगल है, लिंक नंबर 4 का θ4 है, लिंक नंबर 3 का θ3 है। सो R2 की केस में R2 जो ये पोजीशन वेक्टर है, हेयर द लिंक लेंथ इज a, वो हमने a यहाँ लिख दी, और इसका एंगल है θ2, e की पावर j θ2। फॉर लिंक नंबर 3 इसकी लेंथ है b, वो हमने यहाँ लिख दी, और इसका एंगल है θ3, वो हमने लिख दिया e पावर j θ3। ये नेगेटिव, यहाँ वाला नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह दोनों नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होंगे, R4 और R1 की वैल्यूज हमने लिख दी और इसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया। नाउ वी these form can be converted। अच्छा नहीं, इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं, कांस्टेंट्स, these constants a b c d ये लिंक लेंथ्स हैं आपकी। कांस्टेंट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लिंक लेंथ्स। वेरिएबल्स के कौन से हैं, जो एंगल्स हैं, θ2 हो, θ3 हो, θ4 हो, θ1 हो। अच्छा थीटा, ये वेरिएबल्स हैं, बट वेरिएबल्स भी दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो θ2 है, दिस वन, अगर इस फिगर में देखा क्रैंक का जो एंगल है, and dependent variable is θ3 and θ4, means θ4 and θ3 are going to depend on θ2। जैसे जैसे क्रैंक रोटेट कर दी जाएगी, these the dependent variables which are the coupler angle and this one Walker angle, ये automatically change करेंगे with the help whenever there will be a change in this θ2 means change the crank angle। So now we are going to convert this equation 4.5c into a new। हम क्या करते हैं, वी आर नो दैट आइलर्स आइडेंटिटी जो होती है ना, वो e की पावर प्लस माइनस j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा होती है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस 4.4 इक्वेशन, और हम इसमें अप्लाई करेंगे हर टर्म के ऊपर। ये चार टर्म्स हैं इस इक्वेशन की, और फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग आइलर्स आइडेंटिटी इनटू इक्वेशन 4.5c, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यहाँ लिख दिया है 4.5 इक्वेशन, ये जो यहाँ थी। नेक्स्ट है, in this equation basically it has two components, एक इसमें रियल पार्ट होगा, एक इसमें इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट जो j या आयोटा के साथ आ रहा होगा, दिस वन, जो j sin θ2, j sin θ3, j sin θ4, j sin θ1, all are imaginary parts। So we are going to split this 4.5 equation into two parts, separating रियल पार्ट सेपरेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अबव इक्वेशन वो भी सेपरेट करके जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सबसे पहले रियल कंपोनेंट अगर हम सेपरेट करते हैं तो जे के अलावा वाली टर्म्स हैं वो हमने यहाँ लिख दी। अच्छा हमें पता है फ्रॉम प्रीवियस फिगर हमारे पास θ1 0 है, मींस इफ θ1 इज 0 तो ये cos θ1 जो cos 0 जो है ना 1 होता है, तो यहाँ माइनस डी आ जाएगा। दिस इक्वेशन 4.6 से विल रिड्यूस टू दिस फॉर्म, 4.6 से ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। एंड फॉर इमेजिनरी पार्ट वी आर गोइंग टू राइट ऑल द टर्म्स विद j, तो हमने यहाँ इस तरह लिख दी, j a sin θ2, j b sin θ3, j c sin θ4 minus j d sin θ1। As we know that θ1 is basically the length of grounded link, angle of grounded link, और वो 0 है, तो हमने वो यहाँ पुट किया, तो दिस इक्वेशन अब इस तरह रिड्यूस होगी। सो बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट θ3 एंड θ4, ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग जो है ना उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन 4.6 से एंड दिस 4.6 भी। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली टू गेट θ3 एंड θ4। फॉर दिस पर्पस आइसोलेट θ3 ऑन लेफ्ट साइड इन बोथ इक्वेशंस। जब आप θ3 वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो वी विल अटेन 4.6c इक्वेशन एंड 4.6d।
नेक्स्ट ये होगा, नाउ securing the above two equations 4.6c and 4.6d and then add them. जब हम ऐड करेंगे तो sin square थीटा 3 प्लस cos square थीटा 3 ये हमारे पास ना 1 होता है. We know that कि as sin square थीटा 3 प्लस cos square थीटा 3 is equal to 1. तो हम ये यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा b square is equal to remaining term 4.7b इक्वेशन आ जाएगी. Now we are going to open the square of this equation. अब एक्सपेंड करेंगे इस स्क्वायर को तो और रीअरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी. स्टिल दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं, हम लोग 2ac को दोनों जानिब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के. when 2ac will be divided on both sides of equation then rearranging तो इक्वेशन कुछ नई फॉर्म में आ गई, बट स्टिल इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. So we are in order to simplify this equation we will introduce new constants to further simplify link lengths in above equation. link lengths क्या है, d c a ये सारी link lengths हैं, a b c d ये चारों जो हैं. to further simplify this 4.7d equation link lengths in this above equation are represented as constants k1 k2 k3. अब now we will substitute this k1 k2 k3 in above equation और ये जब पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी है, बट स्टिल ये दिस इक्वेशन कंटेन्स cos थीटा sin थीटा. इन एनी इक्वेशन जब cos थीटा भी आ रहा हो sin थीटा भी आ रहा हो दिस इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. तो हमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा और देन we know that cos theta 2 minus cos theta 4 जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है. ये मैथमेटिक्स में आप आइडेंटिटीज पढ़ के आए हुए हैं. सो पुटिंग द आइडेंटिटी इन इक्वेशन दिस 4.8 भी तो आपके पास जो है ना ये वाली टर्म जो राइट साइड वाले थी वो कुछ इस तरह रिड्यूस होकर cos theta 2 minus cos theta 4 आ गई. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फ्रूडेनस्टीन इक्वेशन. तो फ्रूडेनस्टीन इक्वेशंस इसको कहते हैं. नेक्स्ट है दिस इक्वेशन 4.8b, this one can be reduced further by substituting half angle identity. जिसको हम further भी reduce हमें cos b and then rearranging again आप कर सर आवाज कट रही है. जब हमें पता है cos इसके इक्वल होता है और cos थीटा sin थीटा 4 इस इन दो इक्वेशन 4.9 इक्वेशन हमें पता है, ये आप मैथमेटिक्स से पढ़ के आए हुए हैं. सो putting these equation 4.9 in above equation 4.8b and then rearranging तो अगेन आपके पास एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बन गई है. To simplify, above equation will be further simplified if link lengths and input angles are collected as a constant ABC. Now again we are going to introduce new constants ABC जिसमें A आपका इस टर्म के इक्वल होगा, B आपकी इस टर्म के इक्वल होगा, C इसके इक्वल होगा. ये हमने अज्यूम किया है. These terms are assumed. Then अब this we have finally attained equation 4.10 is quadratic equation. For quadratic we know that from our previous mathematics knowledge that quadratic equation has two roots. इसकी दो वैल्यू होंगी प्लस माइनस के साथ. So that यहाँ से हमारे पास थीटा 4 की वैल्यू आ जाएगी ये वाला 4.10b equation. So to analyze this solution, equation 4.10b will have two solution depending on plus minus condition. And these two solution will be of three types. इनकी आगे फिर three types होंगी. तो फर्स्ट जो इसकी टाइप होगी सोल्यूशन की, इट मे बी रियल एंड इक्वल सोल्यूशन आएगा. सेकंड टाइप विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सोल्यूशन आएगा. दोनों मींस व्हेन द टर्म अंडर स्क्वायर रूट बिकम्स नेगेटिव, तब आप ये वाली टर्म अगर नेगेटिव हो जाएगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन आ रहा होगा. एंड इट मीन्स द लिंकेज इज नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज. ये तब होगा जब आपकी लिंकेज नॉन ग्रेशॉफ होगी. द चूजन लिंक लेंथ्स आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग कनेक्शन. इसका मतलब कि या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो हमने लिंक लेंस ली है वो मतलब लिंक नहीं बना रही, जोड़ी आपस में उनको हम जोड़ सकते. तो नेक्स्ट है देन देयर विल बी ए नो रियल सॉल्यूशन फॉर दैट वैल्यू. और थर्ड सॉल्यूशन आपके पास आएगा, यहाँ तो रियल और इक्वल था ना, थर्ड सॉल्यूशन होगा रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन.
यूजली दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन विल अकर, आमतौर पे ये आ रहा होता है हमारे पास इस इक्वेशन 4.10b का सोल्यूशन। देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ थीटा 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ थीटा 2। दो वैल्यूज क्यों आ रही है हमारे पास थीटा 4 की? बिकॉज in any 4 bar linkage the minus solution gives theta 4 for the open configuration and theta 4 prime 4 ये जो 2 वाला है it will give the cross configuration। अब ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी ओपन एंड क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन वो अब दोबारा आ रही है। दिस इज ओपन कॉन्फ़िगरेशन जिसमें लिंक नंबर 3 इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस लिंक नंबर 1 मीन कपलर इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस ग्राउंडेड लिंक। एंड इन जो क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप ये गौर करें डॉटेड लाइन के साथ कर्सर की मूवमेंट पे गौर करें तो in this configuration link number 3 is going to cross this grounded link। तो दिस आपके पास हमने दो टीम एंड्स के ऊपर जो है ना इसको कॉन्फ़िगरेशन बना दी है। सो क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफाइन करते हैं ये वाली जो डॉटेड कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। इफ थीटा 2 इज प्लेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द ये थीटा 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है मींस क्रैंक का जो एंगल है। इफ द टू लिंक्स एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, क्रैंक की आपका शॉर्टेस्ट लिंक है और जो एडजेसेंट लिंक जो बकिया दो एडजेसेंट लिंक है क्रैंक के दैट आर कपलर एंड द ग्राउंडेड लिंक। If theta 2 is placed in first quadrant and remaining two links adjacent to shortest link cross each other, then linkage will be called cross configuration linkage, Grashof linkage। और अगर if theta 2 is placed in first quadrant and two links adjacent to shortest means coupler and this grounded link जो adjacent है इस crank के they are not going to cross each other, that is called open configuration of Grashof linkage। So linkage configuration depends on assemblage method of links but not link lengths। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोथ कॉन्फ़िगरेशंस आर आल्सो कॉल्ड टू सर्किट्स ऑफ लिंकेज। तो हमारे पास थीटा 4 अब देखें ये हमने यहाँ व्हाटएवर एनालिसिस वी हैव डन अप टिल नाउ वी हैव अटेन्ड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा 4। इस फिगर के अंदर हमारे पास थीटा 4 और थीटा 4 प्राइम की वैल्यू आई है। थीटा 4 प्राइम क्या होगा? थीटा 4 सॉरी थीटा 4 मींस थीटा 4 1 ये इस फार्मूला के अंदर 4. जो 4 थीटा 4 1 मीन थीटा 4 ये इस डायग्राम में ये हमारे पास हो रहा है। एंड दिस थीटा 4 प्राइम दिस इज शोइंग बेसिकली थीटा 4 2 जो कि नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा या पॉजिटिव के साथ आ रहा होगा यानी वाइस वर्सा जिस तरह भी आप कह रहे हैं। So up till now we have attained the value of theta 4। This will be the equation if we will incorporate this equation in Excel। तो हम लोग जो है सिंपल पीछे से ये जो थीटा 2 की वैल्यूज है ये चेंज करते रहा करेंगे। फाइनली वी विल अटेन द वैल्यूज ऑफ थीटा 4 360 रोटेशन क्रैंक के पेपर हर एंगल पे क्या वैल्यू हमारे पास थीटा 4 की आ रही होगी वो हम इजीली कैलकुलेट कर लिया करेंगे। So up till now we have attained the theta 4 value, theta 4 formula of theta 4। So now we want to calculate the formula of theta 3 जो कि हम बहुत सिंपल है 2-3 स्लाइड्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर है। कैसे? फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड वी नो दैट यहाँ तक हम इसको ना सोल्यूशन करके आए हुए हैं। सो solution of theta 3 is similar to theta 4। For this purpose previously we have isolated theta 3, now we are going to isolate theta 4 on left side। इसकी theta 4 की सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे हम ले गए। देन हमने नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4.6c एंड 4.6d हमने ये 4.6c और d जो थी हमारी इक्वेशंस इसको हम लोगों ने इनको हमने स्क्वायर कर दिया एंड देन एडिंग देम विल एलिमिनेट। यहाँ वो 6c और d शो नहीं हुई स्टेप्स डायरेक्ट किए हुए हैं। सिर्फ यहाँ सिर्फ बताया ये स्टेप्स थ्योरी में 1-2 स्टेप बताया जा रहा है कि सिंपल जो है ना तरीका वही है। सॉल्यूशन आप डायरेक्ट हम लोग जो है ना 2-3 स्टेप्स डायरेक्ट इसमें कर रहे हैं। सो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4.6c एंड 4.6d एंड एडिंग देम विल एलिमिनेट थीटा 4। यही हमने पहले भी किया था। द रिजल्टिंग इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड फॉर थीटा 3 एंड वाज डन as was done above for theta 4 yielding this expression। finally ये expression 4.11 ही हमारे पास आ जाएगी। अब बीच में 4.7 8 9 10 equations all the steps वो हमने डायरेक्ट उसको रिमूव कर दिया वो हम लोगों ने नहीं किए हैं क्योंकि सारा एनालिसिस सेम है। नेक्स्ट है this k1 constants in this equation k1 k4 k5 will be of this value 4.11 b equations शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4.11 A will reduce to this form in which D इसके इक्वल होगा E should be equal to this and F इसके इक्वल आ रहा होगा। नेक्स्ट है
now this will 4.12 equation is basically a quadratic equation. It should have two roots. इसका solution ये होगा, इसके भी दो roots बनेंगे. As with the angle theta 4, जैसे पिछली इक्वेशन बनी थीटा 4 वाली, इस वक्त थीटा 3 वाली इक्वेशन हैज आल्सो टू सॉल्यूशंस कॉरस्पॉन्ड क्रॉस एंड ओपन सर्किट्स ऑफ लिंकेज. इसमें भी थीटा 3 की दो ही वैल्यूज आ रही होंगी. नेक्स्ट है, जैसे कि ये इस फिगर में आपको नजर आ रही है, यानी ये थीटा 3 की वैल्यू होगी दिस वन, और जो थीटा 3 प्राइम की होगी वो इस तरह, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएं तो वो यहाँ जाके ये डॉटेड लाइन के साथ आपकी जो है ना वो आ रही होगी. और फाइनली यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है. जी, एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन बताएं, कोई आपको क्वेश्चन हो? एनीबॉडी? हैंड रेज करें अगर कुछ समझ नहीं आया. आज का जो हमारा सारा लेक्चर है वो हमारा जो है डेरिवेशन के ऊपर है. बेसिकली हमने इसकी थ्योरी पढ़ी और डेरिवेशन ड्राइव किया है इसको. तो ये जो आपको इक्वेशंस अभी नज़र आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, थीटा 4 1 वाली, ये इक्वेशन हमारी यूज़ होगी. मतलब थीटा 4 1, थीटा 1 और थीटा 4 2. बेसिकली देखें, थीटा 4 1 आपका क्या होगा, ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन होगी. थीटा 4 2 ये आपकी क्लोज कॉन्फ़िगरेशन या क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी. ऐसे ही पिछली स्लाइड पे थीटा 3 1 और थीटा 3 2 की हमने वैल्यूज़ को यूज़ किया होगा, निकाला है उसकी तो इन्हीं वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, और जिससे हम लोग जो है ना अपनी लिंकेज को सॉल्व कर लिया करेंगे. ये आगे आपको एक थोड़ी देर में हम्म, ये हमारा जो आगे यही जो थीटा 4 1 2 और थीटा 3 1 2, ये आप थीटा 3 1 2 ये इस 35 नंबर स्लाइड पे आ रहा है. इनकी वैल्यूज आपकी यूज होंगी इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ना इसको यूज किया करेंगे. तो बताएं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको फिर आंसर कर देता हूँ, वरना फिर आज की क्लास एंड करते हैं. जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. तला ने मुझसे पूछा है, ये इटसेल्फ ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड है. और अगर आपको जो है इस रिकॉर्डिंग अभी जो आज हमने पढ़ इसमें भी रिकॉर्डिंग में कोई मसला हो तो ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग मेरे पास पिछले सेशन वाली है वो भी पड़ी है, आपको वो भी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है. जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?